way that he did was between the results of the prelims and between the mains, he wrote one full-length test every day. So between prelims and mains itself, he wrote about 60 tests of GS only. First of all, I have to complete the exam. It was my first priority. Whenever I start preparing for the mains, what things which come to my mind was, first of all, I have to write 20 questions in almost 3 hours. So that was my first target always. In all the exams, there would be some questions for which you don't know the answers. And you have to write something about that, because that 1-2 marks which you get for that answer, that makes a big difference. 3 घंटे का continuously पेपर लिखने में ही हम लोगों को डर लगता है कि यार स्टार्ट कैसे होगा, बट लास्ट तक आते मेरा लास्ट 1 मंथ में तो ऐसा हो गया था पेपर ही लिखना है, 3 घंटे या कुछ इशू नहीं होगा। तो मैं एज यूज्ड टू स्टार्ट, जैसे ही गेट रेडी होता था, सुबह ब्रेकफास्ट करा और साथ के साथ मेरा पेन चलना शुरू हो जाता था। डेली आप टेस्ट लिखते हो तो यू वुड बी बिकम हैबिचुअल फॉर दैट। एंड सबसे बड़ी बात होती है जब आप पेन स्टार्ट करते हो मेंस में तो आपको डर नहीं लग रहा होता। Hello everyone, we have Jayant Garg with us. He is All India rank 64. He was the part of Smash Means program 2024, and perhaps he was, or he has the one of the highest marks in the essay and the ethics paper. Okay. So today we will be discussing the strategy that he followed and with respect to his paper-wise strategy as well. So first of all, Jayant has, among all the toppers, Jayant has the one of the unique approaches with respect to the UPSC mains. Unlike the normal aspirants who, or the 99% of the aspirants who had the answer writing inertia, where they first prioritize reading, then notes making, and after that, if time permits, they start answer writing. So this is the case for 99% of the aspirants, but the Jayant has the completely different approach, which I would call as answer writing passion. Okay, so the way that he did was between the results of the prelims and between the mains, he wrote one full-length test every day. So between prelims and mains itself, he wrote about 60 tests of GS only. The rest optional and essay I'm not even counting. So that is the way which he followed, and because of that his content was so consolidated and his structure was so consolidated, because of which the application part, where even though you have the knowledge, without practice you fail to apply that into the actual exam. But when you do this much of the practice, whatever applied question UPSC asks, you already have the structure, or you develop that muscle memory through the practice. So that is the strategy which he followed. So I will give the stage to Jayant and he will explain that strategy in detail. Then we will talk about the other papers. So in all the GS papers, my strategy was that first of all, I have to complete the exam. It was my first priority. Whenever I start preparing for the mains, what things which come to my mind was, first of all, I have to write 20 questions in almost 3 hours. So that was my first target always. So whenever once the result of the prelims was declared, I directly jumped into writing questions, because I know that writing 20 questions in 3 hours is a big challenge for all the students. So I want to win that challenge, because content is unlimited. Yeah. We cannot imagine that we have revised all the content, or we have all the content. Yes. It will come directly. Yes. Once we start writing. So I first won that inertia, like how to overcome that fear. So the day when the result was declared, from the next day till the last day of exam, 9 to 12, on every day I used to write one question paper, be it for any test series, any subject. I would write GS 1, 2, 3, 4, 5, whether I know about that, whether I have read that or revised that exam subject or not. I used to write. That was the first thing which I did, because if you write so much papers, then whenever you appear in the exam, you won't be fearing that whether I would be able to complete that or not. And rest assured, in all the exams, there would be some questions for which you don't know the answers. And
you have to write something about that, because that 2 marks which you get for that answer, that makes a big difference. So I never want to lose that. Moreover, if you write daily, you know how to structure. And many students face that challenge कि जब आप आंसर राइट करते हैं तो आप एक पार्ट मिस कर जाते हैं, and that cause you 2 marks, 3 marks. And even initially I was also facing that challenge कि मैं जब when I used to write the answers, I write one part, a big page, and then left a little space for the main content. So that used to cost me 2-3 marks in test series. तो मैंने उसको फिर, क्योंकि मुझे वो मार्क्स भी लीव नहीं करने थे, तो मैंने अपनी वो मसल मेमोरी डेवलप करी कि मैं डेली राइट करूंगा, और आई यूज टू टेक केयर कि कितना पार्ट किस पार्ट के लिए जा रहा है. और दैट स्ट्रेटजी वर्क फॉर मी वेरी वेल, बिकॉज मैंने GS 1, 2, 3, 4 में लास्ट तक आते मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे आई डोंट हैव टू थिंक कि मुझे पेपर स्टार्ट करना है, बिकॉज एक 3 घंटे का कॉन्टिन्यूसली पेपर लिखने में ही हम लोगों को डर लगता है कि यार स्टार्ट कैसे होगा. बट लास्ट तक आते मेरा लास्ट 1 मंथ में तो ऐसा हो गया था पेपर ही लिखना है, 3 घंटे या कुछ इशू नहीं होगा. तो मैं एज यूज टू स्टार्ट, जैसे ही गेट रेडी होता था, सुबह ब्रेकफास्ट करा और साथ के साथ मेरा पेन चलना शुरू हो जाता था, और विदाउट एनी फियर. और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ूंगा कुछ लिखूंगा, आई स्टार्ट राइटिंग, एंड देन 12 बजे तक मैं पेपर कंप्लीट हो जाता था मेरा. इवन कई बार तो 2-3 मिनट पहले भी कंप्लीट करके देन आई रीड दैट पेपर. मतलब उसके बाद मैं शुरू करता था उस सब्जेक्ट का जिसका मुझे अगले दिन पढ़ना है, ठीक है. एंड मोर ओवर वेंस आई राइट दैट एग्जाम, आई यूज टू एनालाइज दैट एग्जाम. जब मेरा नॉट दैट कि कितना मुझे क्या ऑब्जर्वेशन आई, क्या आई, जो मुझे आंसर की होती है, जैसे जिसमें हमारे मॉडल आंसर होते हैं, आई यूज टू रीड मॉडल आंसर फॉर ऑल द पेपर्स. जितने मैंने आज तक टेस्ट सीरीज में पेपर एग्जाम्स दिए थे इस स्नैप में, सबके मैंने मॉडल आंसर रीड करे. बिकॉज व्हाट आई फील इज, आपका कंटेंट जो होता है मॉडल आंसर से आप इनरिच कर सकते हो. और जो भी अच्छी एग्जांपल्स होती थी, आई यूज्ड टू राइट दैट एग्जांपल इन माय नोट्स, बिकॉज एग्जांपल्स आर अ वेरी बिग पार्ट इन एनी आंसर, बिकॉज आपको सब्सटैंटिएट करना होता है. मुझे लगता है कि मैंने पिछले अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में जो मेन डिफरेंस करा है कि मैंने एग्जांपल्स बहुत ऐड करी, और एग्जांपल्स आई कलेक्टेड फ्रॉम मॉडल आंसर्स, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो अनलिमिटेड, कितनी आप करोगे, बट वो मॉडल आंसर से आपको अच्छी एग्जाम्पल्स मिल जाती है. मोर ओवर, क्योंकि मेरे पास काफी पॉसिटी ऑफ टाइम रहती थी, तो आई डोंट कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि ये बुक भी पढ़नी है, ये मैगजीन पढ़नी है, बिकॉज आई फील इज, क्योंकि जो मॉडल आंसर आप अगर इतने एग्जाम पेपर लिख रहे हो, वो पेपर क्या होता है, वो पेपर जो उस टाइम पे पीरियड में करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बेस पे ही होते हैं. और उस पेपर में जो भी आपका मॉडल आंसर होता है, उसमें आपका स्टैटिक पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड. तो उससे मेरा स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाता था, करंट अफेयर भी कवर हो जाते हैं, और मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी. तो दैट स्ट्रेटजी वर्क वेरी वेल फॉर मी इन इवन ऑल द GS पेपर्स. इवन एसेज ऑल्सो दैट स्ट्रेटजी वर्क, बिकॉज जो मैं ऐसे लिखता था, आप अगर 8 एक टेस्ट लेते हैं तो 8 क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखने आपको 2 होते हैं, बट आई यूज टू रीड ऑल 8 एसेज विच आर गिवन, और उसमें जो मुझे अच्छी एग्जांपल लगती थी, आई यूज टू राइट दैट. कोई अच्छा वर्ड लगता था, आई यूज टू राइट. तो मेरे नोट्स लास्ट में जो बने थे, वो लास्ट डे तक बनते रहे थे. और उसमें क्या था, एग्जाम्पल्स होती थी, उसमें अच्छे वर्ड्स होते थे, ताकि विच आई विल रेफर एट द लास्ट मोमेंट ऑल्सो एंड ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस, ताकि वो मेरे डेवलप हो जाए, और वर्ड्स में आई कैन राइट इन द नेक्स्ट एसेज और नेक्स्ट टेस्ट, जो भी मैं लिखूंगा तो उसमें मैं फिर राइट करता हूँ. Right. So basically, see now one part, the application part, he already covered it by practicing this much. Okay, so the one fundamental thing which we emphasize a lot, that is you need to start the answer writing as early as possible in your preparation. Okay. Secondly, after the prelims also, you have to ensure that you are writing all the FLTs, and that too in the given time. So in 3 hours you need to practice that, just in order to develop the muscle memory. But writing is one part. The process after the writing, which Jayant explained, is equally important, where he is referring the model answers, and apart from the model answers, he is also comparing his content with the model answers content, and from there also he is developing, or he is incorporating the examples part. So, and one last thing that he again emphasized was basically with respect to the importance of the data and the examples for the substantiation. So while reading itself, even if you read the newspaper, it shouldn't be the passive reading of the newspaper. You need to have the exam oriented approach. If you
read something, immediately you should think where I can use this particular news in the, or in which topic, or where I can use it as the example, right? So this is the process that you guys also need to follow. Maybe you won't be able to write as many tests as he has written, because in my experience also, in last 3 years, so 60 is what you can say, it's beyond aspirational also. In 1 year you can attempt 60. Between pre and mains, it's just amazing. The next thing would be with respect to the post-test discussions. So after the tests get evaluated, we had lots of post-test discussions. So what were your major learnings from them, and were you able to incorporate them into your structure? Because what happens is, when you practice so much, your style becomes bit rigid, हाँ जी, राइट? तो ज़्यादा फिर कितने भी कोई सजेस्ट करे तो वो सैचुरेशन आ चुका होता है, वो रिजिडिटी आ चुकी होती है, वो चेंजेस लाना इज बिट डिफिकल्ट, ठीक है? एनीवे योर स्ट्रक्चर वाज गुड, तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरिंग ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बट फ्यू इनोवेशंस दैट वी टॉक्ड अबाउट, वेर यू एबल टू इनकॉर्पोरेट दोज, तो वो आपने उस पर कैसे वर्क किया था? बिकॉज मैंने पोस्ट सेशन जो भी डिस्कशन करी है, तो बिकॉज मैं शुरू से ही हमेशा मेरा स्ट्रक्चर यही रहा है कि आई वुड राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और दैट आई फॉलोड फ्रॉम द लास्ट जितने भी मैंने मेंस के अटेम्प्ट दिए हैं। तो मुझे उसमें मुझे पता था कि मुझे कोई ज़्यादा चेंज नहीं लाना, और उसमें ज़्यादा चेंज ला भी नहीं सकता, बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग कॉन्टिन्यूसली दैट वाज इनबिल्ट इन मी, ठीक है? और उसमें चेंज लगाना लास्ट मोमेंट पे दैट वाज नॉट जरूरी भी नहीं था, जरूरी भी नहीं था। तो मैंने जो मुझे चेंजेस मैंने करे दैट वाज अ चेंजेस इन हाउ आई हाईलाइट द थिंग्स। जैसे कुछ चार्ट बना रहा हूँ, आई वाज कॉन्टिन्यूसली मेकिंग वन चार्ट, ठीक है? तो उसमें मुझे वेरिएशन लानी थी, आई वाज गेटिंग द फीडबैक कि मुझे वेरिएशन लानी चाहिए, आई शुड नॉट राइट द मोनोटोनस आंसर्स। तो उसमें मैंने कुछ डायग्राम्स चेंज कर दी, किसी जगह बॉक्स बना दिया, किसी जगह हाईलाइट करने के लिए ट्रायंगल आई यूज, स्क्वायर्स आई यूज, बॉक्स को हाईलाइट कर दिया। दैट वाज द फीडबैक व्हिच आई एम गेटिंग। मोर ओवर इनिशियली आई वाज यूजिंग लेस ऑफ द एग्जांपल्स, बट मैं उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा डालता था। Even some of the feedbacks which I am getting is that the content you have written in 20 questions is not humanly possible to write in 3 hours, because you have written. I used to write from the first page to first line to last line, entire page filled with the data and content. So I was getting the feedback that you are crossing the word limits massively. तो आई यूज टू राइट द एग्जाम्पल्स, ताकि मैं उसको रेशनलाइज करके फिर मैंने एग्जाम्पल्स को एज अ यूज करा ताकि मैं वर्ड्स कम कर सकूं और जल्दी लिख सकूं उसको। तो वो फीडबैक मैंने अपना ये अंदर इनकॉर्पोरेट करा, और वो आई थिंक दैट वर्क वेरी वेल फॉर मी इन द एथिक्स ऑल्सो, बिकॉज एथिक्स में क्योंकि सबसे लेंथी पेपर मुझे लगता है कि एथिक्स को, क्योंकि मुझे हमेशा से एथिक्स का यही फील रहा है कि आई वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट द एग्जाम, और मेरा हमेशा यही रहा है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रैंडम कि पहले केस स्टडी कर ली, पहले कोई क्वेश्चन कर लिया, फिर आई यूज टू राइट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एंड देयर इज नो टाइम टू गो बैक, ठीक है? तो फिर मेरा हमेशा यही रहता था कि मुझे पहले पूरा करना पेपर। तो उसी के लिए फिर मैंने जब उसको कंटेंट को थोड़ा रेशनलाइज करा दैट बेस्ड ऑन द फीडबैक, फिर मैं उसको और जल्दी खत्म करने लगा। और केस स्टडी में सबसे ज्यादा मुझे यही रहता कि केस स्टडीज वी कैन राइट अनलिमिटेड, बिकॉज वेरी जेनरिक थिंग्स आर देयर। तो उसमें आपको कुछ है ही नहीं, आप कितना लिखोगे? अगर आप ज्यादा लिखोगे तो दैट विल इम्पैक्ट योर लास्ट केस स्टडी। तो मेरा हमेशा से रहा है कि मैं उसको कंटेंट को मॉडर्नाइज करता, उसकी जगह डायग्राम्स ऐड करो, एग्जांपल्स ऐड करो, ताकि मेरी लास्ट केस स्टडी तक कंफर्टेबली आई कैन राइट द सेम पेज, सेम थिंग्स। Okay. And with respect to the case study also, the one thing that we discussed was not to have your answers in a monotonous manner कि सेम ही स्ट्रक्चर 6 के 6 में आप यूज कर रहे हो। तो उसको डिफरेंस लाने के लिए स्पेसिफिकली द सजेशंस दैट वी गिव कि you give the introductions of different types, कि if you can bring in the context, then the this you can add the vision statement or the guiding principle. फिर 6 में से 2 से 3 में आपको स्टेक होल्डर देने हैं, बाकी में नहीं पूछा है तो मत दो। एंड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटेशन while giving the evaluation of the options, and लास्ट में जो केस स्टडी हम सजेस्ट करते थे कि if you know any similar case study you can add or go beyond the demand, generate one more dimension कि as in कि वे फॉरवर्ड ही दे दिया या फिर ऐसे। तो ऐसे कुछ चेंजेस अपने केस स्टडी में लाए थे।
ऐसे केस मैंने चेंजेस लाए थे व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग। तो मैं ऐसे ट्राई करता था कि किसी में स्टेक होल्डर्स दूं, किसी में ना दूं, किसी में विजन स्टेटमेंट डाल दूं, किसी में इंट्रोडक्शन सिंपली एक्सप्लेन द केस, किसी में उसकी वैल्यूज डाल दी। दैट आई वाज ट्राइंग इन व्हेन आई वाज गिविंग द टेस्ट। बट जब मैं एक्चुअली पेपर में आया तो उस टाइम पे इतना ज्यादा आपके पास टाइम कंस्ट्रेन होता है कि आप यू कांट थिंक। बट हाँ, कुछ केस स्टडीज में लिटिल वेरिएशन आई कुड इम्प्लीमेंट, बट नॉट इन द मेजर सेंस, बिकॉज उस टाइम पे लाइक दिस इस टाइप का पेपर में मुझे काफी लेंथी लगा। कुछ कुछ केस स्टडीज वर क्वाइट लेंथी। तो मेरा हमेशा यही था कि यार पहले उसको कंप्लीट करना है मुझे, तो मैंने वेरिएशन करे बट ज्यादा नहीं करे, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि उसका कोई भी इम्पैक्ट मेरे टाइम पे पड़े। राइट। एंड दिस इज योर GS3. this is GS3, this is your ethics paper. So if you can highlight few of the things in, or if you want to pick few of the answers. फर्स्ट थिंग आई वुड हाईलाइट कि जैसे मैंने जहाँ पे एग्जांपल डाली है, देखो यहाँ पे मैंने फॉर द हाईलाइटिंग द एग्जांपल आई पुट दिस मार्क। ये मैंने इस टाइम पे इनकॉर्पोरेट करा। अर्लियर आई यूज्ड टू राइट बहुत मोनोटोनस मैनर में। ये हाईलाइट मैंने एग्जांपल्स को हाईलाइट करा है पूरा। यू विल फाइंड इन ऑल द पेपर आई यूज दिस, बिकॉज दिस विल हाईलाइट कि ये एग्जाम्पल है, और मैंने हर एक उसके बाद एग्जाम्पल डाली है। ये थ्रेटन द पेज, यहाँ पे मैंने इसको लिखा छोटा, बट आई यूज टू राइट एग्जाम्पल्स, इवन हेयर एग्जाम्पल। देन आई यूज द वर्ड्स विच आर इन आर सिलेबस, लाइक एथिकल रिलेटिविज्म, ठीक है ना। उसके बाद हर किसी में एग्जाम्पल्स है, हर किसी में यू विल फाइंड दिस। आई थिंक दैट विल बूस्टेड माई मार्क्स अ लॉट, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल्स के साथ सब चीजों को सब्सटेंटिएट करा। इन ऑल द क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट एग्जाम्पल्स। जहां पे मुझे भी मिल रहा था आई हाईलाइटेड द एग्जाम्पल एंड पुट द एग्जाम्पल्स। और इस बार मैंने एग्जाम्पल्स में भी काफी वेरिएशन लाया कि पहले हमारे पास कुछ सिविल सर्वेंट्स होते थे, कुछ होते थे, उन्हीं का एग्जाम्पल देते, बट मैं इस बार सिविल सर्वेंट्स के अलावा प्राइवेट लाइफ में इवन लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स, सबकी एग्जाम्पल्स दे रहा था। ये आई थिंक ऑल्सो वर्क वेल फॉर मी। सो द डाइवर्सिटी विद इन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट इज द विजिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल्स। तो अगर देखोगे हर एक हियर यू कैन क्लियरली सी वेयर ही इज डूइंग दैट or he is substantiating. So even if you have a broader look over this, here also in this complete answer you can clearly see how many examples that he has given. So it's not just about substantiating your answers, it's equally important to have the visibility of that substantiation. One more thing here, कि जैसे मैं essay के लिए अपने quotes याद करता था, तो earlier I used to write the quotes in the essay only. बट जब मैंने सोचा कि आई कैन रीयूज देम इन GS4 ऑल्सो, तो मैंने यहाँ पे wherever I find the opportunity I used to write a quote जो मैंने उसके लिए याद करे थे, I reuse them in the GS also, GS 1 to 3, जहाँ पे मुझे मौका मिला I used to write the quotes, ताकि it would add a value also और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। You're right. Examples हैं this the examples. Now coming to the case studies भी अगर आप देखोगे तो even yes, one more thing is with respect to the dimension coverage. Okay, so if you see his structure, his points were maximum of 2 to 2.5 lines. तो उसकी वजह से what used to happen was in 10 marker question he used to write at least 10 to 11 points. And this year specifically after the prelims, that one thing that we tried to incorporate was to increase the dimension coverage. तो एवरेज अगर 9 to 10 पॉइंट्स रहते थे तो वी ट्राई टू इंक्रीज दैट टू अराउंड 11 to 12. दैट हैज इंक्रीज्ड हिज मार्क्स बाय एटलीस्ट 0.5 मार्क पर क्वेश्चन, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है. सो मोर द डायमेंशंस यू कवर, more the points you substantiate using the examples, that is going to add more marks into your answer. This is your case studies, so you can just go through the केस स्टडीज में मेरी अप्रोच रहती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड अंडरस्टैंड द केस क्लियरली, बिकॉज उसमें कुछ भी गलती यानी कि यू विल लूज द मेजर पोर्शन ऑफ योर मार्क्स. तो मैं हमेशा केस स्टडी को अच्छे से रीड करता था, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज आर देयर इन द केस स्टडी, तो उसके बेस पे ही मेरा आंसर हमेशा रहता था. तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. और उसका मैं स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही करता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द केस, या फिर उसमें क्या एथिकल डायलेमा रहा है, ठीक है, आई यूज्ड टू राइट द केस. उसके बाद
what feedback I was getting from major wherever I was getting help, तो वहाँ पे मेरा feedback हमेशा ये था I was not using the ethical words which are there in the in our syllabus. तो I tried to write that as much as words I am getting. तो मैंने फिर वर्ड्स की भी एक vocab की एक पूरी अपनी नोट्स बनाए थे जिसमें I was used to write the ethical words कि कौन से हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटीज, विक्टिमाइजेशन, जो भी है मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा वर्ड लग रहा है तो आई यूज टू राइट दैट वर्ड्स. तो फिर मैं उसको जहां जहां मुझे मौका मिलता था आई यूज टू राइट, तो ताकि मुझे अच्छा वर्ड भी मिल जाए और एथिकल वर्ड से कवरेज हो जाए. So basically you develop the your ethics vocabulary as well. So और उसके बाद कोर्स करेक्शन आई यूज टू गो इन द स्टेप वाइज डायरेक्शन कि सबसे इमीडिएट क्या रहेगा, हमेशा आई यूज टू फॉलो इमीडिएट क्या रहेगा, बाद में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसके बाद, बिकॉज कि ऐसा नहीं कि रैंडमली पहले ये हो जाएगा फिर उसके बाद हमेशा चाहे मैं उसको जैसे भी लिखूं आई यूज टू ट्राई कि मैं सब स्टेक होल्डर्स का शॉर्ट इमीडिएट से लॉन्ग टर्म पे जाऊं. तो मेरा हमेशा लास्ट में लॉन्ग टर्म आता था कि मेजर्स फॉर एड्रेस द इंस्टेंट लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा. तो दैट वाज द अप्रोच व्हिच आई फॉलोड इन द केस स्टडीज. right. Okay. These all the papers will be uploading on our portal also. The one more thing I want to discuss is ki as your approach was more practice oriented, right? So the content consolidation part, how did you manage that? Because for example, what we normally suggest is you pick a micro theme. Suppose you have picked a micro theme on e-governance, so you need to have few key pointers ready. Jैसे for example e-governance, you can have few of the data. जैसे with respect to the total government saving of over 3.5 lakh crore, whatever. Then you can have one of the committee. You can have then set of the examples, state level and national level, whatever. And then for issues, you can have the framework. So that is the consolidation that we suggest. But your approach was more practice oriented. Right. So how did you work upon that consolidation aspect? Let's take e-governance. तो what points, मतलब उसका आपने कंसोलिडेशन कैसे किया था? मेरी इसमें थोड़ी सी अप्रोच अनकन्वेंशनल थी कि मैं ये नहीं करता था कि ई गवर्नेंस का पूरा एक नोट्स बना लिया या बिकॉज आई यूज टू फील कि यार जो बेसिक पॉइंट्स है वो आई वुड बी एबल टू रिकॉल. ठीक है, तो आई डोंट मेक एनी एग्जैक्ट नोट्स फॉर दैट. हाँ, मेरे अपने नोट्स होते थे, दैट वाज द माइक्रो नोट्स वेयर आई यूज टू कलेक्ट द डेटा. जैसे ई गवर्नेंस का कुछ भी डेटा है कहीं भी मुझे मिला, किसी आंसर में, मॉडल आंसर में मिला या किसी भी पेपर न्यूज़पेपर में मिला, आई यूज टू राइट दैट इन माई मॉडल माई नोट्स. उसको मैं ऐसे ही आई यूज टू बिल्ड माई, मेरा टारगेट रहता था कि आई यूज टू मेक स्मॉल डायरीज. मैं 5 to 6 स्मॉल डायरीज बनती थी मेरी हमेशा, हर मेंस के टाइम पे, हर प्रीलिम्स के टाइम पे. उसी स्मॉल डायरीज को आई यूज टू रेफर टिल द लास्ट. और उसके लिए मैं टाइम एलोकेट करता था कि एग्जाम से 10 दिन पहले से भी ये डायरीज पढ़ूंगा मैं. उसमें सिर्फ डेटा होता था और जो मुझे अच्छे वर्ड्स लगते थे, अच्छा चीजें लगती थी जो मैं आंसर में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि जेनरिक वर्ड्स आई फील दैट आई वुड एबल टू राइट बाय माई सेल्फ. और जो जैसे वे फॉरवर्ड हो गया, वो हो गया, तो उसका मैं कभी भी ऐसे एग्जैक्ट नोट्स नहीं बनाता था. हाँ, जैसे कोई केस स्टडी ई गवर्नेंस पे कोई मुझे कमेटी भी मिली तो आई वुड राइट इन दैट ओनली. कोई ऐसा कंसोलिडेटेड नहीं था बिकॉज मुझे पता था कि मुझे लास्ट में वो 5 डायरीज तो पढ़नी ही पढ़नी है. फिर मैंने ई गवर्नेंस का चाहे पहले पेज पे लिखा हो चाहे 10वें पेज पे भी लिखा हो, तो मुझे कोई इशू होता नहीं था उससे. And those data points or the example points that you added, were they segregated as per the topic या फिर जो भी मिलता था ऐसे ही ऐड कर देते थे उसमें? नहीं, मेरे पास मैंने टॉपिक वाइज नहीं करा था, बट मैंने ऐसे करा होता है कि एक डायरी एसए की है, एक सारे जीएस के लिए है, एक मेरी है ऑप्शनल के लिए. ठीक है, क्योंकि फिर मैं जीएस वाइज मैंने सेग्रीगेट नहीं करा था बिकॉज इट विल टेक मच टाइम फॉर मी कि आज ये डायरी में लिखना है, इसको इस डायरी में. तो मैं एक ही डायरी में जीएस का सारा लिखता था, वो मैं लिखता जाता था. आई यूज टू बिल्ड दैट. उसके बाद भी मैं माइक्रो नोट्स भी बनाता था उसके. वो 10 डायरीज होंगी, उसके बाद मैं उस डायरीज को पढ़ूंगा, 10 दिन पहले पढ़ूंगा, तो उसकी मैं एक छोटी एक और डायरी बनाऊंगा जिसको मैं बनाऊंगा कि ये सिर्फ जीएस की है, लास्ट दिन को पढ़ने के लिए, जिस दिन मेरा एग्जाम है उस दिन पढ़ने के लिए. फिर मैं एक ऐसी डायरी बनाऊंगा जिसको मैं लास्ट के वीक में कॉमर्स जितना मेरा ऑप्शनल था उसको पढ़ूंगा. ऐसे के एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ूंगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं उसको प्रायोरिटी पे देता जाता था. जैसे ये डेटा और भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर मैं ऐसे एक माइक्रो नोट्स तक चला जाता है. लास्ट में मेरे पास इतने दिन का भी नोट्स होते थे कि मैं लास्ट जिस दिन मेरा एग्जाम है सुबह उठ के क्या पढ़ूंगा, तो उसके भी मैं लास्ट के 2 पेज बनाता था जिसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा होगा. तो दिस वे आई मेक द नोट्स. राइट. सो बेसिकली द अप्रोच वाज यू प्रैक्टिस मोर एंड just remember
notes making and consolidation is a continuous process. ठीक है कि like he said till the last day of the exam he was making the notes. तो last day क्या करना है उसका भी आपका वो डायरी. And then with respect to the value addition also, that is also the continuous process. So the from overall approach of Jayant, what I can simply say is you have to, for the UPSC or to get good marks in the mains, the only thing that you need to do is practice and the post practice process. Simply writing the tests is not sufficient. After the test also, for that particular topic you need to read the model answers and do the value additions, right? So ये थोड़ा सा reverse engineering type method है, but again considering the micro themes or considering the syllabus topics, टेस्ट में आपके सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते ही है. तो that is the one way of doing the things. Apart from that, with respect to the GS, in essay, how you used to structure your answer? Because in essay also you have 117 marks, which is very, very good compared to the last year. And you were able to improve it by around, I think, 22 marks. 22 marks in the essay and 22 marks in the ethics itself. तो essay आपने, first of all आप बताओ कि आपने essay लिखे कितने थे? देखो ऐसे वाज माय मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट. ठीक है, मैं ऐसे में मुझे हमेशा लगता है डर, क्योंकि मेरा आई स्कोर्ड लेस मार्क्स इन द ऐसे लास्ट अटेम्प्ट आल्सो, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स ऑफ द मेंस. तो ऐसे में जितना मुझे डर लगता था उतनी मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है. तो आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 35 एसेज, उससे भी ज़्यादा ही होंगे. ठीक है, 30 तो मैंने लिखे ही हैं, तो कंप्लीट लिखे हैं. और डेली मैं 4 ऐसे तो डिस्कस करता ही था अपने आपस आप, मतलब आई यूज्ड टू डिस्कस विद माय फैमिली. ठीक है, तो कि क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब है. और इवन आई टुक द हेल्प ऑफ एआई आल्सो कि क्या इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं. बाकी मैं मॉडल आंसर्स जो होते थे, मतलब किसी भी टेस्ट सीरीज के मुझे किसी भी कहीं से भी मिलता था, मॉडल आंसर्स मिलते थे मुझे, टेस्ट सीरीज होते थे, आई यूज्ड टू रीड दैट मॉडल आंसर्स, क्योंकि 1-2 पेज के होते थे. बट हाँ, आई यूज्ड टू गेट द गुड एग्जांपल्स. फॉर एसेज आल्सो कलेक्टेड द गुड एग्जांपल्स. आई हैव 1-2 डायरीज जिसमें सिर्फ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स एंड गुड वर्ड्स. ठीक है, एंड इवन आई टुक केयर ऑफ एवरीथिंग ऐसे कि मुझे कौन सा कनेक्टर यूज करना है, कहाँ पे मुझे वो पैराग्राफ को लिंक करने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ, कैसे कौन सा कोट यूज करना है. इन फर्स्ट मेंस आई डिड अ मिस्टेक कि मैंने बहुत ज्यादा कोट यूज कर दिए. तो वो मैंने अवॉइड करने के लिए इस बार कोट्स कम करे. मैंने आई थॉट कि मैं 2-3 से ज्यादा अच्छे कोट्स यूज करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा. रिलेवेंट इवन एवरी पार्ट, इवन बिगनिंग के लिए मुझे कौन से एग्जांपल यूज कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने अलग एक नोट्स बनाए अपने. एंडिंग के लिए क्या, एंडिंग के लिए कौन सी पोएट्री क्या यूज कर सकता हूँ, उसके लिए अलग से थे मेरे पास नोट्स. किस वे में एंड कर सकता हूँ उसके लिए अलग था कि मैं यार इस वे में मैं एक कहानी से एंड कर सकता हूँ, इंट्रोडक्शन वाली कहानी को एंड करके लेके आ सकता हूँ. उसके लिए भी मैंने पूरा प्रिपेयर करा था, ताकि मेरी इस बार दोनों ऐसे में मैंने यही वेरिएशन करी. एक में मैंने पूरा बिगनिंग वाली कहानी लास्ट से हमने करी, एक में मैंने थोड़ी सी पोएम से एंड करा, एक में मैंने कोट्स, कई बार मैं कोट्स एंड करता था. तो दैट वे आई डिड थिंग्स, ताकि कहीं ना कहीं तो इम्प्रूव कर सकूं. ठीक है, ऐसे में. और विथ रिस्पेक्ट टू द ऐसे में स्ट्रक्चरिंग रिलेटेड, सो वाज देयर एनी ब्रॉडर स्ट्रक्चर दैट यू फॉलोड specifically with respect to, for example, intro, then in intro you give the anecdote, then you give the meaning, then you cover the dimensions, counter argument, or basically the task framework which we call it, thesis, antithesis, synthesis. तो ऐसा आपका कुछ ऐसे में स्ट्रक्चर था. Content is fine, you compiled examples, quotes, then for anecdote also you made the notes. ठीक है, so that's very good. But with respect to structure, or what structure did you follow? स्ट्रक्चर में मैंने ऐसे का, मुझे ना एक बेस्ट एडवाइस, वन ऑफ माय फ्रेंड गिव मी एडवाइस कि ऐसे यू शुड राइट ऐसे कि यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग टू अ चाइल्ड. ओके, ठीक है, ताकि तुम एक बच्चे को समझा रहे हो कि कैसा तुम ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई वर्ड यूज करने हैं बहुत. तो मेरे दोस्त ने एडवाइस दिया था, ही यूज्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन ऐसे. तो उसने बोला था कि तुम एक बच्चे को जैसे समझा रहे हो तो वैसे ही समझाओ. तो हमेशा मैं क्वेश्चंस बनाता था कि यार एक बच्चे को जैसे कुछ कोट समझानी है तो कैसे समझाएंगे. पहले उसका मतलब समझाएंगे, एक कहानी से समझाएंगे क्या तुम बोलना चाह रहे हो. ठीक है, तो मैं वो कहानी बोलता था पहले, तो ये कहानी हो गई. फिर उस कहानी को मैं कैसे लिंक करता हूँ वो हो गया. ठीक है, उसके बाद मैं करता था कि इसमें मेरा एनालिटिकल क्या व्यू पॉइंट है,
व्हाट वाज द एनालिटिकल थिंग इन दिस ऐसे, कि वो भी अच्छे वर्ड्स में क्या हम बोलना चाहते हैं, कि क्या मैं इसको डिस्कस करूंगा। फिर मैं उसके जो की वर्ड्स लगते थे वो समझाता था, फिर उसका जिस्ट देता था। देन आई यूज्ड टू स्टार्ट विद माय फर्स्ट आर्गुमेंट्स, कि गांधी जी ने ऐसे बोला था, ये इस तरीके से सही है, जो उसको बैकिंग करने के लिए कैसे कैसे आर्गुमेंट्स, देन आर्गुमेंट, देन कोई एग्जांपल, देन आर्गुमेंट, देन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। और हमेशा ध्यान रखता था कि कुछ हिस्ट्री से एग्जांपल हो सकता है आर्गुमेंट, कुछ हिस्ट्री से हो सकता है, कुछ पॉलिटिक्स से हो सकता है, किसी भी एंगल से हो सकता है। देन आई यूज्ड टू राइट दैट। और जहां पे मुझे लगता था कि मुझे कोई कोट डाल दिया था, आई यूज्ड टू राइट द कोट ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे ही मैं चलता जाता, ये कनेक्टिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है, वर्ड्स यूज करके, कुछ एथिक्स से आ गया कुछ, तो दैट वे आई यूज्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, कि सिंपल वर्ड से, कुछ ऐसा नहीं कोई हाई बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करता था। और उसी में जहां मुझे लगता था कुछ एग्जांपल डालनी है, यूज्ड टू राइट द एग्जांपल्स। Okay, and basically, agar if you see the dimension part also, so here normally you have gone beyond the pastel aspect. यहाँ तो you have talked about Gandhi ji, then you have brought in the historical aspect. After the history, you have brought in the ethical aspect, right? So what dimensions for that brainstorming part? So what were the dimensions that you prepared? या फिर ऐसे कुछ सेट था कि पेस्टल एक हो गया, बट अपार्ट फ्रॉम पेस्टल ऐसे कोई डायमेंशंस का लिस्ट आपने बनाया था? मैंने ऐसे डायमेंशंस का कभी लिस्ट नहीं बनाया था कि ये डायमेंशन मुझे लगेगी, बट हाँ मैं हमेशा यही सोचता था कि इसको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए किस किस रेल में हम जा सकता हूँ, कि हिस्ट्री में कोई एग्जांपल है या नहीं है। बिकॉज मैं डायमेंशंस, मैं थोड़ी सी बैकवर्ड थिंकिंग भी करता था, कि जहां मेरे पास एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल मुझे याद है, तो ये किस डायमेंशन की होगी। ओके, सो बेस्ड अपॉन द एग्जांपल्स यू जनरेटेड द आर्गुमेंट। डायमेंशंस एंड आर्गुमेंट्स में, क्योंकि कभी कभी मेरे पास आर्गुमेंट होता था, कभी डायमेंशंस नहीं होती थी, तो डायमेंशंस होती थी वो एग्जांपल नहीं, तो जहां पे मुझे एग्जांपल पता है वहां मैं आर्गुमेंट जनरेट करता था, जहां पे मुझे आर्गुमेंट होता था वहां एग्जांपल सोचता था फिर मैं। राइट। और जहां पे मुझे लगता था, जो मुझे अच्छा वर्ड लगता था, जहां से भी मिलता था, आई यूज्ड टू कलेक्ट। जैसे ये अफ्रीका का कोई फिलॉसफी थी, तो आई साउथ अफ्रीका, तो वो ऑल्सो मैंने कलेक्ट करी कहीं से, और जहां पे मुझे अच्छी लगती थी आई यूज्ड टू राइट दैट। ओके, एंड अगेन ये भी चीज आप देखोगे तो फॉर एवरी डायमेंशन ही हैजंट गॉन इलैबोरेटिंग इट इन अ डिटेल, कि जैसे एक पेज पे उन्होंने एक ही डायमेंशन कवर किया है। सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट इज, इफ यू कीप द साइज ऑफ पैराग्राफ लिमिटेड, कि जैसे इफ यू आर कवरिंग योर dimension in about 7 to 8 lines, so what you could do is you could cover more dimensions, right? Anything else that I'll give you 5 minutes. In 5 minutes you can just give the suggestion to the aspirants who will be attempting next year. One thing obviously is write more, and again you emphasize that again and again, because this year also I can clearly say we have more than 100 rank holders, and only those students who have written more tests have got the good results. ठीक है, तो एडवाइस तो आई थिंक आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव द एडवाइस टू। No, you are the one. I feel that the things which work for me and I think can work for all these consistency, कि अगर आप डेली आप एग्जाम लिखते हो, तो यू वुड बी टेस्ट लिखते हो, तो यू वुड बी बिकम हैबिचुअल फॉर दैट। एंड सबसे बड़ी बात होती है, जब आप पेन स्टार्ट करते हो मेंस में, तो आपको डर नहीं लग रहा होता कि विल आई बी एबल टू कंप्लीट, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, यू विल बी राइटिंग 20। यस, एंड आपका पेन रुकेगा भी नहीं। हाँ, पेन नहीं रुकेगा कहीं आपका, चाहे आपको गर्मी लग रही हो, कुछ भी हो। सेकेंड थिंग इज टाइम। आपको हमेशा अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम इज द प्रेशियस थिंग एंड सबसे ज्यादा लिमिटेड वही है। तो मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, यू शुड नो बिफोर हैंड। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तभी मैं अपने नोट्स बनाता था, ताकि मुझे पता हो कि लास्ट दिन तक मुझे लास्ट आवर तक क्या कुछ पढ़ के जाना है। थर्ड, मेरा हमेशा ये रहता था कि कंटेंट जहाँ से भी मिले, जो मुझे अच्छा लग रहा है, आई यूज टू नोट दैट। चाहे मुझे न्यूज़पेपर से मिले, किसी टेस्ट सीरीज से मिले, कहीं से भी मुझे कोई भी कंटेंट मिलता था, आई यूज टू राइट दैट। और फिर मैं वो आई यूज टू राइट दैट एंड कलेक्ट दैट। उसका इनरिचमेंट में मुझे हमेशा यही रहा है। और फोर्थ, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, यू शुड नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू राइट दैट आंसर। एंड इफ पेपर डिफिकल्ट होगा, बिकॉज मैं जब पहला पेपर लिखता था प्रीलिम्स के बाद डायरेक्टली, आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल कि क्या लिखना है, वर्ड्स नहीं आ रहे, बट आई हैव टू राइट।
बिकॉज ये आपके साथ इवन एग्जाम में भी होगा यार, कहीं एक क्वेश्चन छूट जाएगा, यू वुड बी वरीड कि यार सीधा 6 नंबर गए, बट उस टाइम पे आपको डरना नहीं है, उस टाइम पे सिर्फ लिखना है। आपका एम ये है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आता, आई विल राइट, चाहे मुझे उसमें 2 नंबर में मिले, आई विल राइट दैट। बट while writing that where your approach was to fill the page या फिर उसके रिलेटेड जितना याद आ रहा है उतना ही लिखना है? फिल नहीं करना था, हाँ जितना आपको याद आ रहा है यू शुड राइट इन दी फर्स्ट पेज ओनली, ताकि आपको 1-2 नंबर पे मिलने हैं। हाँ, एक पेज अगर आपका खाली छूट गया, बट ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा लिखना है। हाँ, बट खाली कभी पेपर, मतलब कोई क्वेश्चन, मेरा यही एम रहा है कि खाली कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा, चाहे मुझे जितना आता है आई विल राइट दैट। बिकॉज ये हमेशा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ जियोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं जिसका आपको नहीं आता कुछ, यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया, बट उस टाइम पे आई डोंट थिंक कि हमें कॉन्फिडेंस लूज करना चाहिए। राइट, तो उसके रिलेटेड माइक्रो थीम यू पिक एंड देन, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विस्टर है, तो ट्विस्टर इज रिलेटेड टू द साइक्लोन, तो यू राइट समथिंग अबाउट दैट, ऐसे वाज यूज्ड। ओके, राइट।